I request to all district officials, please kindly mute your mic so that it's humble request from National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, New Delhi headquarters. Request to all the district officials, please kindly make sure whether your mic has muted or not. So now I'll hand over to proceedings our Joint Director, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis, sir. Yeah, thank you, Balaji, for organizing this one-day virtual training program on IDRN portal. I'm thankful to everyone who have gathered with us from the state of Madhya Pradesh and who are doing a wonderful job in management of the disasters as we are in today, as we are in the pandemic today. So we are managing these disasters. IDRN is one of the platforms where we can get the inventory and the resources which are available to the district administration, which can be utilized at the time of disaster or any emergency. We'll be briefing you on the various aspects of disaster management, and then my colleagues Balaji and Dharmender, they'll be taking you live on the portal and they will explain you everything in detail, how you can start entering the data with the line departments, and you can go up to how you can generate the reports on this particular IDRN portal. So to start today's proceedings, the state level, Balaji, who is from the state level? Miss Suman Latur, Madam, is a Deputy Relief Commissioner. Okay. Deputy welcome Ms. Suman for this program, and to all the delegates from the district administrations who have gathered with us. And Ms. Suman, Hindi में okay, English में, which language would you be comfortable इसमें हम आपको बताएं. Sir, I think it would for us, our district, to understand the whole training in Hindi. If okay, I think so. That'll be good. That'll be good. We will be taking live on Hindi. Welcome you all. Good morning to all and Jai Hind. To start with today's proceedings, I have one presentation which will I will give a presentation जो कि डिजास्टर IDRN पोर्टल कैसे बना, इसका क्या उद्देश्य है और इसमें हम किस लेवल पे हम एज अ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हम किस लेवल पे हम हैं वो हम इसमें दिखाएंगे. दूसरा, बालाजी और धर्मेंद्र मेरे कोलीग्स यहाँ पे हैं जो कि IDRN पोर्टल को यहाँ पे मैनेज करते हैं. ये आपको लाइव लेके जाएंगे और हर डैशबोर्ड को आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस पोर्टल पे कि इस चीज का उद्देश्य क्या और ये कैसे इसमें समझा जाएगा. टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग स्ट्रेट अवे, आई विल टेक यू, आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन. IDRN पोर्टल जिसपे हम अब प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि बेसिक क्या है इस IDRN पोर्टल का और हम आज किस स्टेज पे इस IDRN पोर्टल पे NIDM और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स किस स्टेज पे हम IDRN पोर्टल को आज की डेट पे हम मैनेज कर रहे हैं. और मध्य प्रदेश जो है, हम जिस स्टेट के साथ आज बैठे हैं और बात कर रहे हैं, हम किस लेवल पे हमारी एंट्रीज और हमारा डेटाबेस अवेलेबल है. मैं चाहूंगा कि आप ये प्रेजेंटेशन सुने और जो भी आपके विचार हों इस प्रेजेंटेशन के बारे में, जो सुझाव हों या कोई भी आपको ऐसा चीज है जो जिसमें कोई डाउट है आपके, वो कृपया हमसे पूछिए, हमसे समझे और समझकर ही आज का जो कार्यक्रम है, ये जो आज का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसको आप खत्म करेंगे. तो सबसे पहले जैसा कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा बताया गया कि हर कार्यक्रम की शुरुआत हमें कोरोना वायरस प्रिवेंशन के बारे में बताने से करनी है ताकि ये जो मैसेज है ये सब तक पहुंचे और हम अपने ही नहीं, हम अपने आस पड़ोस में अपने कोलीग्स के साथ ये मैसेज शेयर करें. कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, फेस्टिवल का त्यौहार आ गया है, हमें अपना मास्क पहनना चाहिए, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सतह को नियमित रूप से स्वच्छ रखें. इसके साथ ही मैं आज का IDRN पोर्टल पे प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा. नेक्स्ट.
जैसे कि हमें सबको पता है IDRN का फुल फॉर्म है इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क। नेक्स्ट ये NIDM मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है इस नेटवर्क जो यहाँ पे एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ दिस NIDM मैं इसका इंचार्ज हूँ। एक वन ऑफ द टास्क मुझे मिला है और मेरे साथ मेरे एडमिनिस्ट्रेटर बालाजी और धर्मेंद्र इसको पूरी तरह से मैनेज करते हैं और जो भी इसमें नया चीज करना है ये दोनों ही मेरे साथ मिलकर हम जो है इसमें मैनेज करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो हमारा देश है उसमें जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बहुत ही वेरीड है। काफी भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज पड़ते हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड्स का खतरा है, तो कहीं पे स्नोफॉल का खतरा है, कहीं एवलांचेस का डर है, तो कहीं पे सुनामीज का खतरा है। तो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ये हमें वल्नरेबल बनाती हैं, हमें प्रोन करती हैं कई तरह के हैजार्ड और इमरजेंसी सिचुएशंस में। मध्य प्रदेश की इटसेल्फ एक बहुत बड़ा राज्य है। हमें पता है इस मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा लैंड मास है आपके पास। आप भी प्रोन है डिजास्टर्स के लिए और एनी इमरजेंसी आप भी जो है कभी भी कोई भी इमरजेंसी से जूझ सकते हैं। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी आज बैठे हैं उनके साथ हम ये बात कर रहे हैं कि IDRN पोर्टल क्या है और हम इस पे क्या कर सकते हैं जिससे कि हम जो है डिजास्टर या इमरजेंसी के टाइम पे ह्यूमन लाइव्स को बचा सकें। हमारी इन्वेंट्री अगर सही जगह पे अवेलेबल है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2004 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक इन्वेंट्री को एक जगह पे रखा गया जिसमें कि रिसोर्स जो कि एक इन्वेंट्री, क्रिटिकल इन्वेंट्री और मैन पावर जो कि चाहिए, जैसे कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का ड्राइवर, ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का एक निर्माण किया गया इस नेटवर्क का। ये 2008 जून में ये NIDM जो कि हम आज बात कर रहे हैं आपसे, हमें हैंडओवर किया गया। हमारा प्राइमरी फोकस है कि जो डिजास्टर मैनेजर्स हैं, जो आप हैं ग्राउंड पे, उन्हें पता हो कि ये मेरी इन्वेंट्री या रिसोर्सेज किस जगह पे रखे हों और हम उसको कैसे एक्सेस करें, किस जगह से हम उसको निकालें ताकि डिजास्टर की जगह पे तुरंत इस चीज को पहुंचाया जा सके, सारी इन्वेंट्री को। नेक्स्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पोर्टल का। ये ऑनलाइन पोर्टल है एज ऑन डेट। इसका API भी बना हुआ है। इसको हम अभी इस API को हम जो है data.gov.in पे भी हम अब डालने जा रहे हैं जिसके तहत कि आप हमारा डेटा जो है वो आप एक्सेस कर सकें। किसी भी सिस्टम से IDRN डाउन है तो आप जो है गवर्नमेंट की दूसरी वेबसाइट NIC की, उस पे जाके इसको एक्सेस कर सकें। ये NIC बेस्ड पोर्टल है, ऑनलाइन है। सारी सिक्योरिटी को वो किया गया है मद्देनजर रखते हुए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पोर्टल को इसको बनाया है। इस पोर्टल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को हमने पासवर्ड और लॉगिन ID दी है। हमारी जो यहाँ पे एक सोच है जो कि NDMA और NIDM MHA की एक सोच है कि इससे नीचे हम ये पासवर्ड नहीं देंगे, क्योंकि एक सेम्बलेंस रहनी चाहिए, एक जगह पे एक कंट्रोल रहना चाहिए ताकि जो डेटाबेस है वो हमारा कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाते हुए जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये नेटवर्क है इस पे 2 बार साइबर अटैक हो चुका है जो कि हम बचे हैं, क्योंकि हमारी जो पासवर्ड पॉलिसी है वो हम पूरा यहाँ पे फॉलो करते हैं। 2 बार हमारे जो पड़ोसी देश हैं, एनिमी देश हैं हमारे, उन लोगों ने जो है इस पे अटैक करने की कोशिश करी है। वो इससे ये जानना चाहते हैं कि इन केस ऑफ डिजास्टर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन एक पर्टिकुलर प्रांत में हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसकी इन्वेंट्री कैसी है, कैसे रिसोर्स है और क्या क्या अवेलेबल है, ये सब दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए, इसके लिए हम इसको सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को मजबूत रखते हैं। इसके तहत ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही इसका पासवर्ड और लॉगिन दिया है। लाइन डिपार्टमेंट्स को हमने फॉर्म्स दिए हैं कुछ, वो फिल करके वो डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे और उसके बाद ही डाटा इसमें अपडेट होगा। डाटा जो है हम यहाँ NIDM में हम देख सकते हैं। ये डाटा हम जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को हर महीने चीफ कमिश्नर्स को, रिलीफ कमिश्नर्स को हम यहाँ से भेजते हैं थ्रू अ DO लेटर फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
नेक्स्ट प्लीज। ये डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी टाइम टू टाइम दिया जाता है और ये काफ़ी आजकल कारगर है इस कोविड-19 सिचुएशन में। ये काफ़ी हमसे मांगा जाता है कि स्टेट में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, कितने मास्क हैं, कितने पीपी किट्स हैं। तो ये काफ़ी हमसे आजकल मांगा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो हम उनको जो है ये डाटा काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम उनको प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस हम आपको पूरा समझाएंगे। हमारे बालाजी और धर्मेंद्र आपको ये लेके जाएंगे। फॉर्म 1 टू अल्फा टू ब्रावो टू चार्ली क्या होते हैं, कैसे इसमें एंट्री की जाती है और लाइन डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है इसमें। नेक्स्ट। IDRN और सारे 36 स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरीज सब इस पे रजिस्टर्ड है। डिस्ट्रिक्ट 740 में से 717 डिस्ट्रिक्ट इस पे रजिस्टर्ड हैं जो कि अपनी एंट्रीज जो है कर रहे हैं। 36 कैटेगरी में आइटम बांटे गए हैं और 289 अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो क्रिटिकल आइटम्स हैं डिजास्टर के या इमरजेंसी के दौरान जो डाले जा सकते हैं, वो हमने इसमें आइटम्स जो है अभी डाले हैं। ये प्रोसेस आइटम्स इंक्लूजन की ये हमेशा जारी रहती है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए, वो यहाँ पे हम जो है आप हमें सुझाव दीजिए, हम इसमें जरूर ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हम मध्य प्रदेश नेक्स्ट मध्य प्रदेश स्टेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल्स का एक स्टेटस हमने एक बनाया है। एज ऑन डेट आपका क्या पिछले क्या है हमारा सितंबर का महीने तक का आपका स्टेटस। Is it opening, Balaji? Sir, already opened, sir. It's not visible. No, it's not visible. अच्छा, एक मिनट से। हाँ सर। So this is the status आपका 30 सितंबर 2020 तक का। अगर आप देखेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने इसमें पीडीएफ में हमने लगाए हैं, ये अभी फॉर्मेट में मैंने लगाया है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे अगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर एक भी एंट्री नहीं है। फिर आप देखेंगे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, बैतूल, भिंड, भोपाल बीइंग द स्टेट कैपिटल 9 एंट्री हुए हैं सिर्फ। बुरहानपुर 23 एंट्री हुई है लास्ट 1 वीक में। छिंदवाड़ा 57 एंट्री, दमोह 53 एंट्री। तो मतलब ये किसी को बताने की वो नहीं है कि भाई हम किसी को पिन पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी कभी बताती नहीं है कि हम अब आ रहे हैं, डिजास्टर कब आएगा। तो इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमें ये जो इन्वेंट्री है इसको अपडेट करते रहना है। समय पे हमें पता चले कि भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या रिसोर्स अवेलेबल है और क्या नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं एंट्री कैसे करनी है, बिकॉज आई सी मेनी डिस्ट्रिक्ट विद 0 एंट्रीज। सो आप जो है इसमें एंटर कीजिए। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर यही रिसोर्स है जो कि हमारे को काम आने वाला है। यही रिसोर्स जो है हमें जो हमारी जान बचाएगा। ये हमारे जो एक बहुमूल्य एक जीवन है उसको बचाने में एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, क्योंकि आपको ये दायित्व दिया गया है, तो मैं यही सोचता हूँ कि इस दायित्व को हम पूरा करेंगे और इस 0 स्टेटस जो आ रहा है काफी डिस्ट्रिक्ट्स का, इसको हम जो है ठीक करेंगे और इसमें हम एंट्रीज डालना शुरू करेंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी क्वेरीज हो, नेक्स्ट नीचे चलिए बालाजी। सो आप देखेंगे कि काफी जैसे कि अगर हम देखते हैं मांडला डिस्ट्रिक्ट 179 छोटा सा है, फिर भी दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट। मंदसौर 224 एंट्रीज इन पास्ट 1 ईयर, है ना। सो मोरेना एक भी एंट्री नहीं। तो बहुत मतलब हमें कैचअप करने की जरूरत है। हमें अपना आइटम्स को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये पोर्टल है क्या और क्यों काम आता है और क्यों हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला इस पोर्टल में एंट्री करने का। एक ही उद्देश्य है कि इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी जो है हमें दिखे, ट्रांसपेरेंसी आए, विजिबिलिटी समझ में आए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता हो कि डिजास्टर आएगा तो मेरे पास कहाँ से क्या इक्विपमेंट आएगा। डिजास्टर कई तरह के होते हैं, आपको पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हादसा। उस हादसे में किस तरह का इक्विपमेंट कैसा है और कैसे दिखता है और कहाँ रखा है, वो सब इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के द्वारा आपको मिल सकती है। नीचे आइए और नीचे। सो आपको अपना स्टेटस पता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने काम किया है और कई डिस्ट्रिक्ट्स को अभी कैचअप करना है। काफ़ी एंट्रीज एक साल में हो जानी चाहिए थी और एंट्री जो है हमें काफ़ी कम दिख रही हैं यहाँ पे। तो कृपया आप जो है देखिए, समझिए। हम आज बैठे हैं एक दूसरे के साथ समझने के लिए
क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें भी पता चले, ताकि जब भी हम आज आपसे मिल रहे हैं कि प्रॉब्लम एरियाज को हम आइडेंटिफाई करें और उसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं वो हम देखें। बंद कीजिए बालाजी इसको। ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड। सो उद्देश्य एक ही है कि आप जो है एंट्रीज करें इसमें, और जो है पता चले कि हमें इन्वेंट्री किस जगह पे हमारी इन्वेंट्री है, क्या स्टेटस है हमारा। नेक्स्ट प्लीज। कोई भी आपका सुझाव, ये हमारा स्टेटस है ऑल ओवर इंडिया का, अगर आप देखें काफ़ी 2016, 17, 18, 19 और अब हम 2020 में हैं, क्योंकि आज हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के से मिल सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जब से गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि इस पे ध्यान दिया जाए, जब से कोरोना वायरस हुआ है हमने काफ़ी ध्यान दिया है। आज हम मध्य प्रदेश के साथ बैठे हैं, ये हमारा 23वां स्टेट है जिसके साथ हम ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं। 23rd आउट ऑफ 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आप हैं। हम जो है हर स्टेट में विजिट कर मतलब ऐसे ही थ्रू वर्चुअल हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमें और लाइन डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग देनी है, तो आप हमें वो भी सुझाव दे सकते हैं, वो ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा जो स्टेटस 2020 का, आप देखें 19 और 20 में काफी फर्क है, इस स्टेटस को हम और इंक्रीज करें। काफी हार्टनिंग है ये स्टेटस, और काफी सारे स्टेट्स इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आईडीआरएन में उनको समझ आ गया, स्पेशली जैसे कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं, इसको फायदा भी हो रहा है। और उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा भी है कि आईडीआरएन पोर्टल को और ज्यादा मतलब हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। इसमें रेगुलर हम इसमें अपडेट चल रहे हैं, हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं, हम काफी कुछ जो है विजिबल करवा रहे हैं, यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका जो सुझाव है फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट, हम उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, और जो भी आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें उसको भी डालें, ताकि हमारी एंट्री जो है इसमें आ सके। नेक्स्ट। ये एपीआई डेवलप किया था, जैसे मैंने बताया कि आप हमारी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं थ्रू दिस एपीआई। हमारा डेटाबेस को इस्तेमाल करके आप अपना जो है मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश में मैं यही बोलूंगा कि अपना अपडेशन करें इन्वेंट्री को, और हमारी इन्वेंट्री को अगर आपने यूटिलाइज करना है तो इस एपीआई के तहत आप यूटिलाइज करें। काफी स्टेट्स कर रहे हैं, काफी स्टेट्स हमारा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास काफी डेटा इकट्ठा हो गया है, बस उसको लगाना किस तरह से वो आपने देखना है। हम भी इस कोशिश में है कि हम इसको ऐसा बना दें कि बिल्कुल एक क्लिक पे ही हमें पता चल जाए कि आज अगर बाढ़ आई है तो कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ के पड़ा है, उसकी फोटोग्राफ क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, लाइफ कितनी बची है, उस बाढ़ में अगर एक बोट है तो बोट को चलाने वाले आदमी कहाँ है बैठे हैं, तो ये सारी डिटेल्स हम इस पूरे पोर्टल में लेके आएंगे अभी। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये 1 जून 2020 को इनॉग्रेट हुआ है, नया डैशबोर्ड है। पोर्टल पुराना है, सब कुछ 2008 में हमें मिला था, जब से 2020 तक इसमें कभी अपडेशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमने काफी यूजर फ्रेंडली इसको बनाने की कोशिश करी है, और हम इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए कि इसमें हमें और क्या आपको चाहिए डाटा, हम उस डाटा को इसमें डालेंगे, उस तरीके से हम डालेंगे। हमें काफी सुझाव मिले हैं स्टेट से, हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इसको संभाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम एक्सपेक्ट करेंगे आप भी सुझाव दें और हम इसको और अच्छा बना सके, ताकि मध्य प्रदेश स्टेट जो है इसको इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी और डिजास्टर्स। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप देखेंगे हमने मोबाइल नंबर के भी साथ में दिया है। हम चाहते हैं कि आप हमसे कनेक्ट हो और हमारा जो है इसमें भागीदार बने, इसमें सुझाव दें और हमसे कनेक्ट हुए, और हमें बताएं कि जो भी आपके सुझाव या सजेशंस या डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है अपडेशन ऑफ डेटा के लिए, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं 24 घंटे और 7 दिन। हमारे लिए कोई वो नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ नहीं है यहाँ पे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपडेट कीजिए अपना डाटा, और इस डाटा को समझिए कि ये डाटा क्यों है, इसकी क्या जरूरत है, यही समझाने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन किया था आज। अभी मैं हैंडओवर करूंगा बालाजी और धर्मेंद्र को, वो आपको लाइव बताएंगे कि इस सिस्टम में कैसे आपको एंट्री करनी है। सो ओवर टू धर्मेंद्र एंड बालाजी। Yes. Okay. Thank you so much for your wonderful presentation, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasi, sir. I request to all the district officials. Now, my colleague is available, Mr. Dharmendra. He will be going to take next 20 minutes hardly. So I request to all the district officials, please kindly make sure whether your mic has muted or not, so that there will be no disturbance during the
during this online training program. So after this part, after the live demonstration, so we will be taking question and answer session also. Whatever you have the suggestion or question, feedback or complaint regarding this particular idea and portal, you may please discuss with the registered with us today. If you have any concern query, meanwhile you may please write in the chat box as well. After this training, we will take your question and answer, feedback, suggestion through chat box also. So we will mention your suggestion in the report as well. So now in the chat box I have mentioned the UTP URL. If there is any internet disconnectivity from your end or any poor internet connection, or if there is no stable internet connectivity, you may please kindly watch through this particular online training program through YouTube as well. So we are each and every program we are telecasting online training program our YouTube channel as well. I hope you all aware already. We have completed 23 state UTs of India this particular idea and training program. So Madhya Pradesh state is the 24th state. It's a honor, our privilege for providing this training to Madhya Pradesh state. Now I hand over to my colleague Mr. Dharmendra will show you the demonstration. हेलो अभी okay Dharmendra, okay. ओके You may please continue. नमस्कार एवरीवन, मैं धर्मेंद्र यादव, आईडीआरएन डेवलपर कम आईडीआरएन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आज आपको बताऊंगा कि आईडीआरएन पे डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे अगर ओल्ड डेटा है उसको डिलीट कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको सबको जो है ट्रेनिंग दूंगा। तो फर्स्ट ये हमारा होम पेज है, ये अभी हमने रिसेंटली 1 जून 2020 को जो है इसको न्यू डेवलप किया है, और ये होम पेज है। इस होम पेज पे सबसे पहले कंट्री वाइड क्वेरी। हेलो बालाजी, मैं हेलो Dharmendra, you are audible. Dharmendra, you may please go ahead. Continue your. Okay. ये हमारा होम पेज है। इस होम पेज को हमने जनरल यूजर्स के लिए बनाया है। इस होम पेज को कोई यूज कर सकता है, और ओवरऑल इंडिया में कहीं भी अगर कोई डिजास्टर हो रहा है और उस टाइम पे उसको कोई किसी इन्वेंटरी डेटा की जरूरत है, तो यहाँ से वो जो है, यहाँ पे हमने सर्च क्राइटेरिया दे रखी है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और आइटम्स वाइज। किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिजास्टर होता है, उससे कोई किसी डेटा की सर्च करना है या उसकी लोकेशन का पता करना है, तो यहाँ पर जाकर, जैसे मैं डेमो में दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ, दिल्ली के सारे स्टेट्स जैसे न्यू दिल्ली, हमने आइटम्स को 3 भागों में बांट रखा है: इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मल्टी मेडिकल सप्लाईज। पर मेडिकल इक्विपमेंट, ये हमारे जो 289 है उसमें से इक्विपमेंट की सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कोई भी, जैसे रेल दुर्घटना होती है उसमें गैस कटर, कोल कटर की जरूरत पड़ती है, और उसको उसकी लोकेशन को पता करना है, तो सीधे जाकर के गैस कटर को जो है सिलेक्ट करना है और फाइनल रिजल्ट पे जाना है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारा गैस कटर कितने, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका जो है किस टाइप का गैस कटर है, और किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट का एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है। इस सब से जो है हम उससे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको जो है तुरंत दुर्घटना के टाइम पे उसको जो है मंगा सकते हैं कांटेक्ट करके उससे। ये हमारा कंट्री वाइड पेज है, जहाँ से ओवरऑल इंडिया का कोई भी पर्सन जो है इन्वेंटरी डेटा को जो है सर्च कर सकता है। ये हमारा ग्रीन बॉक्स है, जिसमें हमने सारे स्टेट दिखा रखे हैं, जो कि सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी जो है ना, स्टेट जो है रजिस्टर्ड है हमारे साथ। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ। ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आईडीआरएन पोर्टल पर एनडीएमए और एनआईडीएम की मदद से जो है ना रजिस्टर्ड कर रखे हैं। 289 आइटम्स हैं। ये डेटा स्टेट रिपोर्ट है जो हम जो है इस आईडीआरएन पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिसमें प्रत्येक
स्टेट और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो है डेटा होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ने कितना डेटा अपडेट किया है, वो सबका इसमें रिकॉर्ड रहता है। जैसे ये स्टेट वाइज है, इस दो भागों में बांट रखा है, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट स्टेट का इसमें रिकॉर्ड होता है। जैसे एमपी का लास्ट 3 मंथ्स का और 1 मंथ का रिकॉर्ड हम अपडेट करते हैं। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट्स को हम आगे एमएचए और स्टेट से रिलीफ कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरीज को फॉरवर्ड करते हैं। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है लास्ट 3 मंथ्स और लास्ट 1 मंथ का। इसमें जो है बैतूल, भिंड, इन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में डेटा अपडेट किया है। बाकी के अदर जो स्टेट हैं उनका 3 मंथ्स का और लास्ट 1 मंथ का स्टेटस 0 है। इसे आप आइडियन पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। डेटा अपडेशन स्टेटस रिपोर्ट में जाकर के आईडीआरएन के बारे में, जैसा कि लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश वशिष्ठ सर ने आपको बताया कि आईडीआरएन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में। ये रिसोर्स इन्वेंट्री पेज है, ये हमने पर्टिकुलर पेज बना रखा है कंट्रीवाइड क्वेरी के लिए। ये बिल्कुल सेम जैसे होम पेज पे है वैसे ही वर्क करता है, पर पर्टिकुलर बना रखा है जिससे किसी को भी जाना है तो रिसोर्स इन्वेंट्री में डायरेक्ट जाकर के डेटा को सर्च कर सके। ये आइटम डिटेल्स है जिससे मैंने पहले ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि ये इसमें 289 आइटम है, और जो आइटम आपको आईडीएन पोर्टल पर अपडेट करने हैं तो उनको यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। जो आइटम आपके पास अवेलेबल हैं वो आइटम इस लिस्ट में है या नहीं है, तो उसको यहाँ पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सीटी स्कैन है, आपके पास कोई आइटम है जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसे आप अपडेट नहीं कर सकते, और आपके पास जो है और उसे आपको डिस्ट्रिक्ट में उससे रिलेटेड मतलब डिजास्टर्स की संभावना है और वो उसमें काम आ सकता है, तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं उस आइटम को इस लिस्ट में शामिल कराने के लिए। ये हमारा यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में डेटा को कैसे अपडेट करना है और कैसे डेटा कलेक्शन करना है उसके बारे में है। ये आईडीएन कैसे वर्क करता है उसके बारे में लिखा है। और ये फॉर्म 1 जो है ये लाइन डिपार्टमेंट को जो है ना फॉरवर्ड करना होता है, उससे इन्फॉर्मेशन मंगानी होती है। उस डिपार्टमेंट का नेम, उस एजेंसी का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, ये सारी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है लाइन डिपार्टमेंट फिल करके देते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को। ये हमारे 289 आइटम है, उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा जो आइटम आता है और उसकी एक्टिविटी क्या है, उन सबको हमने कैटेगराइज कर रखा है 36 कैटेगरीज में। आप आईडीएन पोर्टल पे जाकर के ये सारी लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो आइटम है वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ये हमारा सेकंड फॉर्म है, डेटा कलेक्शन फॉर्मेट, जो लाइन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं इस फॉर्म को। लाइन डिपार्टमेंट इस फॉर्म के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जो है इस इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। फॉर्म 1A, इसमें डिपार्टमेंट एजेंसी से संबंधित डिटेल को फिल करते हैं। फॉर्म 2A में आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। फॉर्म 2A, 2B, 2C फॉर्म सेम ही है, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी सहूलियत इनको अलग अलग कर दिया है। फॉर्म 2B फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के लिए। 2C फॉर्म क्रिटिकल सप्लाईज के लिए है और 2E फॉर्म इक्विपमेंट रिलेटेड है। बाकी फॉर्म का फॉर्मेट और उनके जो फील्ड हैं वो सेम ही है।
ये सारी चीजें जनरल यूजर्स के लिए बना सकती हैं, इन्हें कोई जनरल यूजर जा करके चेक कर सकता है। आगे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या कोई भी है तो उसको जो है लॉगिन के थ्रू ही डेटा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से हमने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनके थ्रू वो डेटा को एंट्री और उनको कैसे अपडेट करना है वो सारी चीजें लॉगिन आईडी के थ्रू ही करते हैं। ये हमने एक डमी यूजर बना रखा है जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटा एंट्री करनी है, कैसे उसको अपडेट करना है। ये हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए डैशबोर्ड बना रखा है कि एंट्री ऑपरेटर जो भी इस पोर्टल को मैनेज इसका रख रखाव देख रहा है वो किस तरह से मतलब डेटा को एंट्री करना है, डीएमडीसी की डिटेल को कैसे एंट्री करना है, वो सारी की इंफॉर्मेशन हमने बना रखी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एडिट डीएमडीसी प्रोफाइल पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो उसमें डीएम और डीसी की जो है इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होता है। प्रत्येक 6 मंथ पे उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है ना अपडेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि ना ट्रांसफर होने के बाद में ना हम कांटेक्ट नहीं कर पाते कि नंबर क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, जिससे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कांटेक्ट कर सकें। इसलिए हर 6 मंथ पे इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना मैंडेटरी है। ये आइटम कोड है, जैसे मैंने पहले इसके बारे में बताया था। यहाँ हमने जो है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी सहूलियत रखा है कि किसी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर को अगर कोई आइटम या अपडेट करना है तो वो यहाँ से डायरेक्ट देख सकता है और कॉपी कर सकता है आइटम को और जा करके अपडेट कर सकता है। ये हमारा डेटा स्टेटस रिपोर्ट है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। बाकी यूजर मैनुअल है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ट्रेनिंग वीडियो जल्दी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये डेटा कलेक्शन फॉर्मेट जो है जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। और नोटिफिकेशन जिसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में हम अभी इसी पर वर्क कर रहे हैं। जल्दी ये पेज जो है यहाँ पे वर्किंग होगा। इसमें हम आपको आपके आइटम से रिलेटेड, आपकी डीएमडीसी प्रोफाइल से रिलेटेड और डिपार्टमेंट एजेंसी की कॉन्टेक्ट डिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि यदि किसी डिपार्टमेंट एजेंसी का आपने कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो है फिल नहीं की है या उसको लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ से अपडेट नहीं किया है तो उसके बारे में आपको मैसेज दिया जाएगा जिससे आप उसको जो है अपडेट कर सकें। जैसे ही डीएमडीसी की कोई इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है या कुछ लास्ट 6 मंथ से आपने उसको अपडेट नहीं किया है तो उसके लिए आपके पास मैसेज आएगा। ऐसे ही आइटम से रिलेटेड कोई आइटम है जो आपने लास्ट 1 मंथ से या लास्ट 3 मंथ से आपने अपडेट नहीं किया या उसकी सेल्फ लाइफ है, जैसे कोई भी ट्रक है या वो जेसी मशीन होती है उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है 10 ईयर या 15 ईयर और उसको आपने अपडेट नहीं किया और उसकी सेल्फ लाइफ निकल चुकी है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा। सेकंड, ऐड टू इन्वेंट, ये मॉड्यूल जो है इसके द्वारा ही डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है। जैसे अभी मैंने आपको हार्ड कॉपी फॉर्म की दिखाई थी पीडीएफ में कि डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें ऑनलाइन यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो लाइन डिपार्टमेंट जो हार्ड फॉर्म को फिल करके लाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस चीज के लिए जो है जिम्मेदार है कि उस डेटा को आईडिया पोर्टल पर फिल करें। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक डमी यूजर बना करके।
यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन का एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर 1 मैंडेटरी है, 2 और 3 और फैक्स नंबर नॉन मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन ईमेल आईडी मैंडेटरी है और सोर्स मैंडेटरी है। अब यहाँ पर ना डिपार्टमेंट का सोर्स, कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री प्राइवेट है तो वो उसका सोर्स गवर्नमेंट नहीं हो सकता, वो प्राइवेट ही रहेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका सोर्स गवर्नमेंट रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा है तो यहाँ पर उसका सोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री ही रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो है आइटम की जो है डिपार्टमेंट एजेंसी की कॉन्टेक्ट डिटेल है जिससे हमें संपर्क कर सकें, वो सेव हो जाएगी। अगर इसमें कोई फिल करते वक्त कोई त्रुटि हुई है तो उसको आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम गलत हो गया है, या उसकी डेजिग्नेशन गलत हो गई है, या उसका एड्रेस गलत हो गया है, या उसका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, कुछ भी उसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से सीधे जाकर के तुरंत। अब यहाँ से डायरेक्ट आकर के आपने कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट एजेंसी का की इंफॉर्मेशन फिल कर दी। अब उसके बाद उस यहाँ से इन्वेंट्री आइटम को फिल करना होता है। क्लिक हेयर टू ऐड इन्वेंट्री रिकॉर्ड। इस डिपार्टमेंट एजेंसी के एड्रेस और इसके डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आकर के, जैसे आपके पास कोई आइटम है, जैसे सीटी स्कैन है आपके पास, तो आपको यहाँ पर सिर्फ सर्च करना होता है। जो हमारी 289 की लिस्ट है उसमें अपने आप ही आ जाएगा वो आइटम। सिर्फ आपको जो फर्स्ट लेटर उसका लिखना है या पूरा नेम उसका लिखना है, अपने आप सर्च होके आ जाएगा जो हमारी इस लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद होगा। अब इसकी यूनिट कितनी है, कितने सीटी स्कैन कितने हैं, उसकी यूनिट क्या है, क्वांटिटी जैसे 50। फिर उसके बाद में इस आइटम की लोकेशन को यहाँ पे फिल करना और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फिल करना मैंडेटरी है। जैसे मैं फिल करता हूँ, आइटम स्किल डिस्क्रिप्शन में आप आइटम से रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिप्शन, कि सीटी स्कैन किस प्रकार का है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये आइटम जो है यहाँ से अपडेट हो गया। अब उसी आइटम डिपार्टमेंट एजेंसी के थ्रू आप मल्टीपल आइटम्स को जो है यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपको बार बार जो है डिपार्टमेंट एजेंसी का रिकॉर्ड फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही वन टाइम जो है डिपार्टमेंट एजेंसी का रिकॉर्ड फिल करना है। फिर उसके अगेंस्ट जो है आप मल्टीपल टाइम्स जो उस आइटम को फिल कर सकते हैं। कोई भी आइटम हो, मल्टीपल टाइम्स उसे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा आइटम फिल करता हूँ, तो आप यहाँ से ऐड इन्वेंट्री फॉर्म से आप मल्टीपल आइटम्स को इन्वेंट्री रिकॉर्ड को जो है सेव कर सकते हैं। जितने भी आपके पास आइटम है उन सबको जो है यहाँ से आप
अपडेट कर सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट एजेंसी का एड्रेस बार बार फिल नहीं करना है, उसको सिर्फ वन टाइम फिल करना है। अगर ऑलरेडी पहले से है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई रिकॉर्ड में जाकर के। यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट मतलब पहले से अगर डिपार्टमेंट एजेंसी का रिकॉर्ड जो है क्रिएट कर रखा है तो आपको इस ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर वो शो होगा। जैसे एमपी प्राइवेट लिमिटेड मैंने बनाया था और वो यहाँ पर पहले से शो हो रहा है, तो आपको दोबारा से फिर डिपार्टमेंट एजेंसी का नेम, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मॉडिफाई करना अगर उसमें कुछ अपडेशन हुआ है तो। अगर वो डिपार्टमेंट एजेंसी बंद हो चुका है तो आप उसको यहाँ से जाकर के डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने 2 आइटम्स जो है अपडेट किए हैं। पहले उन आइटम्स को जाके डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में इस डिपार्टमेंट का नेम, एजेंसी का नेम डिलीट करना है। अपडेट करना है यहाँ से डिपार्टमेंट एजेंसी का कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है तो आप वहाँ यहाँ से जाकर के डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को सर्च करना है और उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एजेंसी के अगेंस्ट आपको कोई नया रिकॉर्ड, नया इन्वेंट्री आइटम आपके पास आया है तो डायरेक्ट जाकर के यहाँ से ऐड आइटम में जाकर के उस आइटम अपडेट कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको सिर्फ आइटम ही अपडेट करना है। अगर कोई डिपार्टमेंट एजेंसी उसकी कोई इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हुई है तो उसको अपडेट करना है, अदरवाइज आपको इस यहाँ सिर्फ आइटम को ही अपडेट करना है। आइटम जाकर के अभी मैंने 3 आइटम्स को जो है अपडेट किया है, तो उनका पूरा आइटम का नंबर क्या है, उसका क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जैसे 50 केजी का है या 10 केजी का है, स्लेज हैमर, सीटी स्कैन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर आफ्टर 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ के बाद में इसकी जो है क्वांटिटी रिड्यूस हुई है या ये आइटम अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से जाकर के उस आइटम को मॉडिफाई कर देते हैं। आफ्टर 10 डे के बाद ये आइटम की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हुई है तो आप सीधे यहाँ से जाकर के इस क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। आपको दोबारा से पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं। ये आपका आइटम जो है ना क्वांटिटी अपडेट हो गई, या ये आइटम जो है 10 डे के बाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से आकर के डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, ये अब आइटम अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐड टू इन्वेंटरी मॉड्यूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ही आइटम्स को और उसके डिपार्टमेंट एजेंसी को कैसे अपडेट करना है, कैसे डिपार्टमेंट एजेंसी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, उसको कैसे डिलीट करना है, उससे रिलेटेड आइटम्स को कैसे अपडेट करना है, डिलीट करना है। आगे क्वेरी इन्वेंट्री में हमने रिपोर्ट्स बना रखी है कि डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट, जिसमें जाकर के आप देख सकते हो कि आपके डिपार्टमेंट ने कितने आइटम्स जो है अपडेट किए हैं और उनकी डेट क्या है, कब कब डेट में किए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सही फिल हुई है या नहीं। जैसे मैंने अभी ना 2 आइटम्स जो है 3 आइटम अपडेट किए थे, उसमें से एक डिलीट कर दिया। तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज जाकर के आप देख सकते हो कि आज आपने कितने रिकॉर्ड्स जो है आईडीआर पोर्टल पर अपडेट किए हैं, उनकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो, उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन।
डेट वाइज जाकर के चेक कर सकते हो आपने किस डेट में कौन सा आइटम जो है अपडेट किया था। जैसे आज की डेट 21 में हमने 2 आइटम्स जो अपडेट किए हैं। यहाँ से आकर के आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंट है, उसने कौन कौन सा डेटा जो अपडेट किया है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड्स आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। आइटम्स में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि इसमें आइटम डिटेल्स है और आइटम का नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। इसमें आप हमें जो आपके पास आइटम अवेलेबल है वो हमारी लिस्ट 289 की है, उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ से हमें मेल लिख सकते हैं कि इस आइटम को जो है आप अपनी लिस्ट में सम्मिलित कीजिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें लॉगिन करने के बाद में इसको लॉग आउट कर दे, क्योंकि इस पे जो 2 बार साइबर अटैक हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है इसको विदाउट लॉग आउट किए हुए जो है छोड़ देता है कुछ समय के लिए, मतलब हमने उसको सेशन का टाइम दे रखा है तो वो हो जाएगा उसके बाद, लेकिन हैकर्स जो है ना उस टाइम में आप यूज नहीं कर रहे हो, उस टाइम में जो है उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। यहाँ से आप जा करके हमें मेल, ईमेल, मैसेज ले सकते हैं, या हमें कभी भी इस नंबर पर, ये मोबाइल नंबर है और ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, जिस पे जाकर के आप हमें 24/7 आवर्स कॉल कर सकते हैं। डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी डेटा एंट्री करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आइटम जो है आपके पास में मौजूद है और वो हमारी लिस्ट में नहीं है, उसको आप लिस्ट में सम्मिलित कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हेलो बालाजी। Yes, Dharmendra. Have we completed? या यस कंप्लीटेड। Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your wonderful live demonstration, Mr. Dharmender. He is my colleague. So now the time to Dharmender. Now Yes. we may request to the district officials and they will discuss we will discuss if there is any questions from their side, or you may please call Dharmender. Generally, I request to all the district officials, please kindly mute your mic. If you have any concern, query or suggestion or feedback, is there any doubt or clarification you want to clarify with us? If you have any complaint regarding this IDR portal, you may please kindly unmute your mic and please register, speak. किसी भी डिपार्टमेंट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सुझाव है, डेटा एंट्री करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें बता सकते हैं। सर बैतूल। यस ठीक सर। यस सर। सर आपका नाम, सर नाम, डिपार्टमेंट बताओ सर। मैं सर राजीव रंजन पांडे, ज्वाइंट कलेक्टर OIC राहत बैतूल। यस सर। ओके सर। एक सजेशन था सर, ये पोर्टल पे जनरली जो आपकी इन्वेंट्री में एंट्री करते हैं, आइटम इन्वेंट्री में, तो उसमें आइटम कोड नंबर आपके लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन जब उस पे डेटा एंट्री करते हैं तो आइटम का नेम भी लिखना पड़ता है। अगर कोड से ही एंट्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आपने सुझाव दिया, मैं आपके सुझाव को जो है ना मेंशन करूंगा और जल्दी जो है ना आप जो है आइटम कोड से भी उसको सर्च कर सकेंगे। सर थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर। Any other questions from anyone from the state of Madhya Pradesh? I request to all the district officer, please kindly unmute your mic. If you have any concern, query, doubt, feedback, suggestion, complaint regarding this particular IDRN portal, you may please register with us.
किसी और डिस्ट्रिक्ट की कोई भी क्वेरी हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। सर बैतूल से एक और रिक्वेस्ट थी सर। यस सर बताइए सर। सर इसमें जो डिपार्टमेंट की एंट्री होती है हमारे यहाँ क्या हुआ सर, गलती से एक ही एंट्री नगर पालिका की 2 बार हो गई है। यस तो सर। आइटम तो डिलीट करने का ऑप्शन है, आइटम डिलीट कर दिया हमने, लेकिन सर। जो डिपार्टमेंट डिलीट करने का या एडिट करने का ऑप्शन नहीं है सर। तो डिपार्टमेंट 2 बार एंट्री हुई है तो एक डिलीट होने का भी ऑप्शन होना चाहिए सर इसमें। यस सर डिपार्टमेंट को डिलीट करने का ऑप्शन है। आप वहां से जाकर के जब आप डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे ड्रॉप डाउन में जाकर के। सर कोशिश किया था, डिलीट नहीं हुआ था सर। दोबारा ट्राई करके देख लेंगे सर, नहीं होगा तो मेल कर देंगे आपको इसे। बिल्कुल सर, आप ट्राई कीजिए और उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमें मेल कीजिए या डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे या लैंडलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। सर जी ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। If you have any concern, query or complaint or any issue with this IDRN portal, you may please kindly write an email to admin.idrn@nac.in at any time. Sure, we will each and every mail reviewing and we will send reply. This is from Ali Rajpur, OIC. Am I audible? Yes, you are audible, madam. Batao, I madam. want to know that this was the inventory for the materials. Is there any inventory for the human resources also, as in firefighters or divers or such sort of? Yes, madam. We have classified 3 categories. One is equipment, another one is skilled human resources, another one is critical supplies. So whatever equipment related items, it comes under the equipment. You may please see in the website, ma'am. See, I will show you once again. Once again, I'll share my screen. I'll show you what are the what are the human resources which we have added. Ma'am, here you can see the user manual. In the user manual, here you can find the skilled human resources. See, resource type skilled human resources. Here you can see the search and rescue team for collapsed structure, search and rescue team with the canals and so firefighter department also is available. Firefighters, fire team. See, these the skilled human resources, ma'am. Firefighting team is available as a specialization oil and installation, high rise building, and for ports, aviation, mines, thermal power plants, nuclear power plants. So likewise, you can see the list of all the list of skilled human resources, ma'am. We have added driver, LML, light motor vehicle driver, and heavy motor vehicle driver, and physicians, and the doctors also we have added physicians and nurse. So likewise, we have added many skilled human resources in the list. You can easily find out. Otherwise, if you want to the more clarification, see here you can here while searching. For example, Madhya Pradesh. I am selecting Madhya Pradesh and district, all districts. See here you can see the option for category human resources. Once if you click human resources, here you will get all the list of human resources which we have already enabled in the IDRN portal, ma'am. See here you can see all the list. That's it, ma'am. If you have any additional suggestion, feedback from your side for including any other skilled human resources, you may please kindly write email to admin.idrn@nac.in. Definitely we will incorporate that list, ma'am. Sure. Ma'am, are you in line? Yes, I got it. I'm okay with Thank that. you, ma'am. Thank you. Any other districts? Any other suggestion, feedback, or
your clarification doubt, you may please kindly unmute your mic. So this is the right time to open your question in this training programs. It's humble request from National Institute of Disaster Management. Please kindly unmute your mic. Whatever you have the suggestion or doubt, feedback, clarification, any complaint regarding this IDRN portal, you may please register with us. Sure, we will definitely clarify your doubts. We will incorporate your suggestion, feedback in this new IDRN portal. The objective of this particular online training program, so we are focusing each and every state. So we are taking each and every district suggestion, feedback from the pan India. So after the training, we will definitely incorporate your suggestion, feedback into this new IDRN portal. Definitely, it may help to the nation. Balaji, if there is none suggestion, we may conclude today's program. I hope Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, किसी का भी कोई भी सजेशन अभी भी अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई ऐसी है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट है, सो विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू ऑन दिस IDRN पोर्टल. दिस आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और आप जो है आए और हमें सुना अपने IDRN पोर्टल के विषय में. मैं चाहूंगा कि आप जो है IDRN पोर्टल पर अपना जो है डाटा को अपडेट करें. आपने अब समझा है कि डाटा को कैसे अपडेट करना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो भी मैनेजर्स आप बैठे हैं जो इस पोर्टल को मैनेज कर रहे हैं, कि एंट्रीज करिए, डाटाबेस को एंटर कीजिए, डाटाबेस को समझिए, डाटा क्या है उसको समझिए, इन्वेंटरी क्या है उसको समझिए. और हमारे आगे के जो विषय इसमें जिस पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वो एक है जियो लोकेशन और जियो टैगिंग, और दूसरा है कि आपको ब्लिंक आएगा, आपको टिकर चलेगा जिसमें कि शेल्फ लाइफ को आपको बताया जाएगा कि इस एंट्री को आपने करना है, अभी एंट्री करना है, ये अपडेट के लिए जो है ब्लिंक आपके पास आएगा. तो इस में हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी ये सिस्टम आपके सामने आएगा. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और हमें सुना. NIDM के सारे कर्मचारी और सबकी तरफ से, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से आप सबका धन्यवाद, मध्य प्रदेश स्टेट का और सभी डिस्ट्रिक्ट का धन्यवाद कि आप लोगों ने IDRN पोर्टल को समझने में आपने अपना समय दिया. धन्यवाद. और वी आर ओपन, हम लोग आप हमें ईमेल से और फोन से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. कोई भी विषय जो आप चाहते हैं कि इस फोरम में ना बात करके आप हमसे पर्सनली बात करके सुलझाना चाहते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम पर्सनल अटेंशन देके और इस पोर्टल को हम आपके डिस्ट्रिक्ट में हम इसमें एंट्री करवा पाए. हमारा उद्देश्य एक ही है कि डिजास्टर के दौरान हमें जो है कहीं भागना ना पड़े, कहीं समझना ना पड़े.